भारत को एक बार फिर से डेविस कप की मेजबानी का मौका मिल रहा है, जिसके लिए दिल्ली जिमखाना क्लब पूरी तरीके से तैयार है। यहीं पर क्वालिफायर मुकाबला होना है। यहां 4 और 5 को भारत और डेनमार्क के बीच में डेविस कप मुकाबला खेला जाएगा। 38 साल बाद दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने होंगी, एक दूसरे को टक्कर देती हुई। इससे पहले दोनों ही टीम एक बार पहले भी भिड़ी हैं, 2 बार ये भिड़ंत हो चुकी है, जिससे एक बार डेनमार्क को जीत मिली तो वहीं दूसरी तरफ भारत को जीत मिली। भारत अभी तक डेविस कप के फाइनल में 3 बार जगह तो पक्की कर चुका है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी है। 3 साल बाद भारतीय टेनिस टीम घर में कोई मुकाबला खेलने वाली है, इसलिए कॉन्फिडेंस तो पूरा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्या वाकई कमाल कर पाएगा? पहले क्वालिफायर मुकाबला जीतना है और उसके बाद डेविस कप अपने नाम करना है, ऐसी कोशिश लगातार टीम इंडिया कर रही है। हम डेविस कप को लेकर इस फील्ड के दिग्गजों से बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनते हैं। उनसे बात की मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने। We have with us Union Sports Minister Anurag Thakur ahead of India's much-awaited clash with Denmark in the Davis Cup tennis championship. Remember, the match is happening on home soil after almost 3 to 4 years. The match will be played in New Delhi. Mr. Thakur, what would you like to say to the team and on this occasion? I would like to give my best wishes to the team India for the Davis Cup, and I'm sure they're going to do well, and there will be a lot of Indians to cheer them at the home pitch. The government has done a lot for sports, do you believe, particularly sports like tennis, and we've seen champions already like Mahesh Bhupati, Sania Mirza, Leander Paes, but do you believe through the government's efforts that more champions will come, not just in tennis but other sports? I think it has to be collective effort of the federations, associations, state governments, national government, and the individuals as well, and corporates also to come on board. And I'm sure with the kind of support the central government has done over the last few years since Modi government has come, the Target Olympic Podium scheme and various other Khelo India programs has actually helped us to, one, identify and nurture the talent, on the other hand, to support the elite athletes to do well at the national and the international level. Do you enjoy watching tennis? I have to ask you. I enjoy watching sports, whether it is soccer, tennis, volleyball, basketball or cricket. Yes. And do you believe finally that it really helps the team, you know, when audiences and the country unites to cheer for them? Of course, yes, it's a great booster. I mean, when you see the crowd around you, and especially at the home ground, when you see a lot of Indians cheering for you, that is the kind of support every player look for. And I'm sure Team India is going to do well in the Davis Cup. Thank you so much for speaking with us. अनुराग ठाकुर ने बधाइयां तो दे दी हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ऐसी उम्मीद पूरा भारत कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आदित्य खन्ना हमारे साथ हैं, टूर्नामेंट डायरेक्टर डेविस कप से। कर्नल रणबीर चौहान हमारे साथ हैं, जो कि सदस्य हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। साथ ही जसजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेरणा भामरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि खुद भी टेनिस खिलाड़ी हैं और बखूबी बताएंगे हमें कि क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं और क्या कुछ उम्मीद फिलहाल की जाए। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल कर लेती हूं, कर्नल रणबीर, चूंकि आपने बहुत से मुकाबले देखे भी हैं, क्या कुछ टीम इंडिया की तैयारी आपको दिख रही है? किस पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है? और फिलहाल की तैयारियां क्या ये सूखा खत्म कर पाएंगी जो डेविस कप भारत अब तक नहीं जीता है? टीम की तैयारियां तो बहुत जोर शोर से चल रही हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जीतेंगे और 100% जीतेंगे। रोहन बोपन्ना is playing doubles absolutely marvelously. अभी रिसेंटली उन्होंने रामकुमार रामनाथन के साथ ATP टूर इवेंट जीता, which is a fantastic thing. और उससे पहले उन्होंने एडिलेड में एक ATP टूर इवेंट जीता। और अभी जो चैलेंजर हुआ है बेंगलोर में, जो फर्स्ट वीक हुआ है, उसमें रामकुमार और सकेत मायनी ने दोनों ने डबल्स का खिताब जीता, which is absolutely fantastic. That shows that they are in great form. अब आइए आप सिंगल्स के ऊपर। रामकुमार इज इन ग्रेट फॉर्म। रिसेंटली ही वन अ चैलेंजर इन वन ऑफ द कंट्रीज एंड ही इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत जोश है। और दूसरे सिंगल्स प्लेयर अब कैप्टन पे डिपेंड करता है किसको खिलाते हैं, बट दे ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। यूकी भांबरी ग्रेट फॉर्म, अभी रिसेंटली ATP में वो प्री क्वार्टर्स में पहुंचे, केम आउट ऑफ इंजरी। फैबुलस प्लेयर, ब्रिलियंट प्लेयर। इनफैक्ट अगर वो पूरी तरह से दुरुस्त रहे तो वो भी अपना मैच निकालेंगे। और फिर प्रजनेश गुन्नाश्वरन, ही इज ऑल्सो इन ग्रेट फॉर्म। ही ऑल्सो वन अराउंड
in ATP tour event, good player. और उसके बाद दिविज शरण, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन गेम्स में, डबल स्पेशलिस्ट हैं, तो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है हमारी टीम देश के लिए ये मैच जीतेगी। और जो एंथुजियाज्म हमारे ऑर्गेनाइजर्स में है, हमारे जो यहाँ के स्पेक्टेटर्स होंगे, दे विल ऑल्सो पुल अप द टीम एंड आई एम वेरी वेरी सर्टेन दैट वी आर गोइंग टू विन इट। आदित्य, चूंकि भारत मेजबानी कर रहा है इस मुकाबले की, जब हिंदुस्तानी सरजमी पर यह मुकाबला हो रहा है, ग्राउंड किस तरीके से तैयार है और ये कॉन्फिडेंस तो एक अलग तरीके से साउंड करेगा इस मुकाबले पर शायद? इस बार डेविस कप की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। आई थिंक 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब डेविस कप जिमखाना क्लब में होस्ट हुआ है, उसके बाद ये जिमखाना क्लब में होस्ट हो रहा है। और प्लेयर्स की तैयारी भी जोर जोर से चल रही हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम पूरी इंडिया के आवाम तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे और टेनिस जो देखते हैं उनके पास ये पहुँचे कि डेविस कप हो रहा है दिल्ली में और ज़ोर ज़ोर से लोग आएँ और टीम इंडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट होता है वो इस बार इंडिया में हो रहा है। अगर लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था तो हम डेनमार्क जाना पड़ता इंडियन टीम को खेलने के लिए, पर यह हमारा अच्छा फॉर्चून है कि इस बार इंडिया डेविस कप इंडिया में हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है। और हमारे सारे टेनिस के प्रेमी जो हैं आके अगर इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारे प्लेयर्स को बहुत हौसला बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मोटिवेशन मिलता है। मैं खुद भी प्लेयर हूं, मैं जानता हूं कि अगर पूरा सपोर्ट आपके साथ रहे ऑडियंस का और टीम का तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने पिछले भी कई सालों में देखा है डेविस कप में बहुत सारे चमत्कार होते हुए हैं जहां हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स ने, लिएंडर पेस ने गोरान इवानिसेविच को, जिस साल गोरान इवानिसेविच विंबलडन जीते थे उसी साल उन्होंने डेविस कप में इंडिया ने क्रोएशिया को हराया था और उसी साल लिएंडर ने गोरान को सिंगल्स में हराया था ग्रास कोर्ट पे। तो पूरी उम्मीदें हैं हमें, पूरी हम सारी तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं और ऑडियंस भी चाहते हैं हम कि देखने आए इसको पूरे नंबर्स में और पूरी तैयारी चल रही है हमारी इसके ऊपर। तैयारी पूरी है, लेकिन तैयारी किस तरीके से जीत में तब्दील करनी है ये खिलाड़ी को बेहतर पता होता है। प्रेरणा, मुझे आप ही से पूछना चाहिए बिना वक्त गवाए कि बतौर टेनिस खिलाड़ी आप इस टीम के सिलेक्शन को कैसे देख रही हैं, साथ ही साथ एक खिलाड़ी को किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, इस मुकाबले में कितने चैलेंजेस हो सकते हैं? भारत और डेनमार्क दोनों ही टीम में कंपेयर अगर करें तो भारत के लिहाज से क्या कुछ चुनौती डेनमार्क की टीम से? मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है डेनमार्क से खेलने के लिए, उनके अगेंस्ट जीतने के लिए। ये पहले भी डेनमार्क से खेल चुके हैं 1984 में और उस टाइम डेनमार्क को हराया था इंडिया ने और उम्मीद यही है कि इस बारी भी वो जीतेंगे और अच्छी तैयारी है। अभी भी काफ़ी वक्त है हमारी टीम के पास ग्रास पे एडजस्ट होने का। ऑलरेडी सब बहुत ही कंफर्टेबल हैं ग्रास पर, बट फिर भी उनके पास काफ़ी समय है, मार्च में है, अभी भी 10-15 दिन है और उनकी पूरी तैयारी तब तक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं सिंगल्स और डबल्स में, इवन दो उनका एक प्लेयर डेनमार्क का प्लेयर 104 रैंक्ड है अभी, और बट फिर भी मुझे लगता है कि हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत ही अच्छी टीम है। राम कुमार अभी 3 टाइटल डबल्स के जीत चुके हैं और ग्रास पर बहुत ही वो कंफर्टेबल हैं। और प्रजनेश भी, चाहे वो उतना कंफर्टेबल ना हो बट उनके पास काफ़ी समय है तैयार रहने के लिए। युकी आप जैसे देख सकते हैं कि हर बारी जब वो आते हैं डेविस कप खेलने, कुछ चमत्कार ही लेकर आते हैं। वो उनका अलग ही जुनून होता है कंट्री के लिए जब वो खेलते हैं। और डबल्स में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं हमारे प्लेयर्स, रोहन बोपन्ना, दिविज शरण और साकेत मैननी को अगर आप देखें तो उनकी बहुत ही बड़ी सर्व है जो हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकती है। तो हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है डेनमार्क को खेलने के लिए। कर्नल चौहान, चूंकि भारत के पास सिंगल्स में मजबूत टीम है, राम, युकी, दिविज, बोपन्ना, इनसे कितना मजबूत होता हुआ आपको भारत दिखता है? टीम इंडिया कितनी ज्यादा मजबूती से डेनमार्क का मुकाबला करने के लिए तैयार है? टीम का मोराल बहुत हाई है। हमारे कैप्टन से हमारी रोज बात होती है, रोहित राजपाल जी, who is also a very experienced, he used to be a fantastic player. और जिसान अली जो कोच हैं, they are all very very charged up and for this current डेविस कप तैयारी बहुत चल रही है। और डेविस कप से पहले हम एक हफ्ता यहाँ पे कैंप चला रहे हैं ग्रास कोर्ट के ऊपर,
जहां पे सारे प्लेयर्स रब शोल्डर्स करेंगे और कैप्टन और कोच को उनको देखने का मौका लगेगा, एंड देन दे विल प्लान देयर स्ट्रेटजी टू हाउ टू गो अबाउट एंड विन दिस फैंटास्टिक टाई। और जोश बहुत है और उत्साह इतना ज्यादा है। और सबसे पहले हमारे ओम पाठक सर की लीडरशिप के अंदर और डॉक्टर अनिल जैन की लीडरशिप के अंदर जिमखाना क्लब वाले इतने एक्साइटेड हैं इस बार इसको होस्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पे जैसे आदित्य जी ने बताया, ही हिमसेल्फ इज सो एक्साइटेड, ही इज द टूर्नामेंट डायरेक्टर फॉर दिस इवेंट। और इन्होंने जो जोश पैदा किया हुआ है और ऑर्गेनाइजर्स आर सो एक्साइटेड, इट इज हैपनिंग आफ्टर 50 years एंड क्राउड्स आर गोइंग टू बी फुल एंड एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मैजिकल। और पेट्रियोटिक जितना जोश खिलाड़ियों का हाई है उससे कम हाई नहीं है फैंस का, जो इस मुकाबले पर नजरें टिकाए हुए हैं। हालांकि अगर मैं फिटनेस की बात करूं, एक खिलाड़ी का फिट रहना बड़ा जरूरी होता है और टेनिस इज ऑल अबाउट फिटनेस। हालांकि आप तीनों ही बहुत ज्यादा फिट हैं, लेकिन आदित्य ये सवाल मेरा आपसे होगा, भारतीय टेनिस खिलाड़ी कितने फिट हैं इस मुकाबले के लिहाज से? जो स्पोर्ट है उसमें अगर आप फिट नहीं हो तो वो तो कोई खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता। तो हमारे टेनिस प्लेयर्स आर बहुत ज़्यादा फिट है। मतलब ये आई थिंक एक स्पोर्ट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें चाहिए, स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस एज वेल, मसल पावर, इसमें आपको सारी चीज़ें चाहिए, वरना आप टॉप 100, 200, 300 में आप आ ही नहीं सकते आप। और हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम एक तो बिल्कुल इंजरी फ्री हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और फिजिकल फिटनेस की बात करें तो हमारे सारे खिलाड़ी आर सुप्रीमली फिट। पर ये स्पोर्ट ही ऐसा है जहाँ पे सारे देश के सारे खिलाड़ी जो 100, 200, 300, टॉप 500 में वो सारे एक लेवल की ही फिटनेस पे हैं, क्योंकि वो इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा है स्पोर्ट में। 200 नेशन खेलते हैं ये स्पोर्ट, तो फिट ना होने का तो गुंजाइश ही नहीं है इस स्पोर्ट में। हमारे खिलाड़ी आर सुप्रीमली फिट और हमारे खिलाड़ी आर एक्सट्रीमली स्किलफुल एज वेल। अगर आप देखो तो इसलिए हम डबल्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी का स्किल भी बहुत ज़्यादा है। और अब यूकी भांबरी इज ऑल्सो पूरा फिट हो चुके हैं, तो फिटनेस सबकी जोर शोर से जारी है, बिकॉज सारे टूर्नामेंट्स ये पहले प्रील्यूड खेल रहे हैं, चैलेंजर खेल रहे हैं और एटीपी ओपन्स खेल रहे हैं। पिछले जनवरी से और फरवरी से टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं और पूरी ट्रेनिंग चालू है, तो ये अपनी फुल फिटनेस में है सारे इस टाइम पर, और ना फिट होने की तो गुंजाइश ही नहीं है कोई। अब चूंकि हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो कोविड की हम बात ना करें, उसका जिक्र ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आपने देखा होगा, और आदित्य यही सवाल मेरा आप ही से है, पोस्ट कोविड हमने हर एक गेम में बहुत से चेंजेस देखे हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो। इस लिहाज से डेविस कप में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखो, पोस्ट कोविड खिलाड़ी के लिए तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, उसने तो उतना ही जाके करना है जो उसने खेलना है, उसी टाइप की फिटनेस चाहिए, गेम तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। पर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें मॉनिटर करना है कि सबके टेस्ट हों, चाहे वो ऑडियंस आए, प्लेयर्स आ रहे हैं उनके टेस्ट से, बायो बबल में रखेंगे हम प्लेयर्स को। तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से भी आ रखी हैं और हमारी खुद की हैं और दिल्ली जिमखाना क्लब की, तो वो सब हमें बिल्कुल पूरी तरीके से लागू कर रखी है हमने ऑलरेडी क्लब के अंदर। और बहुत स्ट्रिक्ट बायो बबल में सारे प्लेयर्स रहेंगे। और पर इन टर्म्स ऑफ गेम ऐसा कोई बदलाव गेम में आया नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स तो तब भी जाके उतना ही ट्रैवल कर रहे हैं, उतना ही खेल रहे हैं। जब थिंग्स थोड़ी नॉर्मल हो गई हैं तो सबने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रखा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या कोई भी और टूर्नामेंट हो, 250, 500। अभी महाराष्ट्र ओपन हुआ है पूरा इंडिया में, जो पूरे स्ट्रिक्ट बायो बबल में हुआ है, और सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आए थे वो टूर्नामेंट खेलने के लिए। हमारे इंडियन प्लेयर रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने टूर्नामेंट भी जीते हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं पूरी सारी फॉलो होंगी कोविड के लिए। और पर कोविड का प्रभाव फिटनेस और टेनिस की तरफ एज अ स्पोर्ट तो कुछ भी नहीं है। चूंकि प्रेरणा आप खुद एक टेनिस खिलाड़ी हैं, पोस्ट कोविड क्या कुछ गेम्स में बदलाव हुआ है, और एक खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी की जिंदगी में कितना बदलाव हुआ है? मुझे लगता है कि जो फिटनेस लेवल उनका पहले था वही आज मेंटेन वो कर रहे हैं, उसी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। थोड़े प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, कहीं भी अगर ट्रैवल करना हो तो भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं। हम देखते हैं कि कई बारी रूम में वो क्वारंटीन्ड होते हैं फॉर अबाउट 7 days 14 days, वो फिर भी अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करते हैं। आई थिंक उनको जब कोर्ट पर जाना होता है तो अल्टीमेटली वही फिटनेस लेवल उनको प्रदर्शन वही करना है उनको। भारतीय टेनिस को हिटर चाहिए या फिर तेज रफ्तार सर्विस चाहिए प्रेरणा?
सर्व बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ज़रूरी है, सर्व और रिटर्न। अच्छा, आपके लिहाज से दोनों ही ज़रूरी है। अब आप टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जब आप जिक्र कर रही थी, यूकी भांबरी से कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं, भाई भी हैं? जी, हमेशा यूकी जब कंट्री के लिए खेलते हैं उनका एक अलग ही लेवल हमें दिखता है। इवन दो वो 3 साल से नहीं खेले हैं इंटरनेशनल सर्किट, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और जब वो कोर्ट पर उतरेंगे तो अपना बेस्ट देंगे और डेनमार्क के अगेंस्ट हमारे लिए वो जीत लेकर आएंगे। कर्नल चौहान, टेनिस के बाकी मुकाबलों में भारत का डंका बजता है और गेम्स के लिहाज से तो भारत विश्व भर में अपनी पहचान आगे बढ़कर मनवा चुका है, लेकिन डेविस कप क्यों चूक जाते हैं हम? ये क्वेश्चन ठीक तरह सुनाई दिया, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? कर्नल चौहान, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि टेनिस के अगर बाकी मुकाबलों की बात करें तो भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है, लेकिन ये डेविस कप से हम बार बार क्यों चूक जाते हैं? आपको क्या लगता है? ये डेविस कप एक सबसे प्रीमियर टेनिस इवेंट है जहां पे जो टीम स्पोर्ट है, सिर्फ एक ही होता है जहां पे पूरी टीम खेलती है। और डेविस कप के अंदर 150 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज ह्यूज। दैट मीन्स होल वर्ल्ड प्लेज टेनिस, और ये हर कंट्री में इट इज वन ऑफ द टॉप 5 स्पोर्ट्स। और डेविस कप के अंदर हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, एंड वी हैव बीन ऑलवेज रैंक्ड अमंगस्ट टॉप 20 नेशंस इन द वर्ल्ड। और 3 बारी हम लोग फाइनल्स में भी पहुंचे हैं डेविस कप के। अनफॉर्चुनेटली 2 बारी हम खेले नहीं बिकॉज ऑफ आवर नेशनल पॉलिसी, पर अदरवाइज डेविस कप के अंदर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है और अच्छा आगे भी रहेगा, बिकॉज प्लेयर्स आर सो पैशनेट। जब वो यू टेक लिएंडर पेस, जब वो देश के लिए खेलता था डेविस कप के अंदर, ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, चैंपियन। उसने आदित्य जी ने, जो हमारे टूर्नामेंट डायरेक्टर, उन्होंने बताया, गौरव नेवेंजेविक जब विंबलडन जीता था यहाँ पे ग्रास कोर्ट में NSCI में, आई सॉ दैट मैच, और उसको हराया यहाँ पे 5 सेट के अंदर, विच इज एब्सोल्युटली, इसके अंदर रैंकिंग वगैरह मैटर नहीं करती है। और डेविस कप में हमारा परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है एज फार एज टेनिस इज कंसर्न। और एशियन गेम्स में भी अब मोर और लेस नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड ओलंपिक में भी हम एक मेडल जीत चुके हैं अब तक जी। तो टेनिस का परफॉर्मेंस हैज बीन गुड। टीम इंडिया के टेनिस खिलाड़ियों का जोश भी हाई है। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका भी जोश हाई है। सवाल और भी बहुत से हैं क्योंकि लगातार जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे सवाल कर रहे हैं। कुछ और सवाल होंगे, इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, इंटरेस्टिंग जवाब होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे।